providership. Dr. Goyal has successfully used and implanted these various designs and is well versed with all systems in various clinical scenarios from simple to complex deformities. He has also performed medical surgeries for bone-out, loose and painful joint replacements. He is trained and experienced in alternative treatment of arthritis. These include medications, physiotherapy, exercise, dietary, bracing, injection therapy, arthroscopic surgery, cartilage transplant, and partial joint replacement. So I invite Dr. Sanjeev Goyal to come and enlighten us on the today's topic, that is advancements in orthopedic surgery, arthroscopy, sports engineering, hip and knee joint surgery. Sir, please. So first of all, thank you for organizing this evening and inviting me here. I am also thankful to Overseas for sponsoring this event. There are some good medicines and I have been using them for around 10-15 years now and with good results. They were very good medicines, especially in orthopedics department. बाकी भी आपके होंगे ना, तो orthopedics सब होता है. So, just to introduce myself, I'm orthopedic surgeon specialist in joint replacement, arthroscopy, trauma. So, Guardian Hospital is, you can say it's an orthopedic hospital. So, we have a team of doctors, जिसमें कि I am myself doing joint replacement, arthroscopy and trauma. I have got Sahil Batra. He's doing spine with me. I have a pediatric orthopedic surgeon. He's doing all the pediatric orthopedics with me. I have foot and ankle surgeon and wrist and hand surgeon. So it's you can say it's a multi-specialty orthopedic hospital. And we have a plastic surgeon associated with us. We have three anesthetists with us, and one cardiologist and one physician. So it's you can say it's an orthopedic hospital. So, nowadays का आजकल क्या है कि एडवांसमेंट हर एक स्पेशलिटी में एडवांसमेंट होती है. So this आज का लेक्चर जो है will be on advancement in orthopedics. So there advancement and makes in hip and knee joint replacement. This is the normal joint, the arthritic joint. You can see the arthritic joint, this is arthritis, the joint space is reduced. So what we want is the joint like this, after replacement. These are the last stages of the joint. So this is the normal knee alignment, bilkul straight hai, this is the arthritic knee. So what we want is a straight knee. We want a straight alignment. So you can see the joint, fully space खत्म हो गया, and this is the joint replacement with stents. So this is second day of the surgery, and this is the joint replaced joint. So पहले जो था ये था कि पेशेंट्स को ओल्ड एज में कैसे joint replacement करना है, पर जैसे से आजकल जो है getting the joint replaced. तो इससे क्या है कि वी वांट जॉइंट जो आजकल टेक्नोलॉजी से उससे कि पेशेंट की लाइफ इंप्रूव हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, और पेशेंट को एक बार जब रिप्लेस करें तो दैट शुड कंटिन्यू थ्रू हिज लाइफ. सो व्हाट वी वांट इज हाई फ्लेक्स एंड मोर रेंज ऑफ मोशन, पोटेंशियली लॉन्गर लास्टिंग, नॉर्मल फीलिंग एक जॉइंट को, और इट शुड बी जेंडर ऑप्टिमाइज्ड. जैसे फीमेल मेल पेशेंट्स में एनाटॉमी डिफरेंट है, उसी तरह का जॉइंट हो, एंड इट शुड बी लेस इन्वेसिव प्रोसीजर. नी को आर्थोडीज करते हैं, नी या हिप को फिक्स कर देते हैं, उसके लिए भी आजकल बहुत अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं. पेशेंट एक अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है इसके साथ. तो दीज आर द इम्प्लांट्स. ये नी फेल हो गया था, मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, उसके बेसिस पे इम्प्लांट जो इसमें डालते हैं जिससे हम नी को फ्यूज कर देते हैं एक पर्टिकुलर एंगल में. तो दिस इज द पेशेंट. ये इसने दिस शी वाज ऑपरेटेड व्हेन आई वाज इन गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल. इसका 20 साल के बाद इसका नी खराब हो गया, और इसका नी इतना खराब हुआ कि ये रिप्लेस नहीं बनाना चाहते. तो इसका ये इम्प्लांट यूज किया था अराउंड 1.5 years बैक. तो इसकी कैन वॉक नॉर्मली, इसको कुछ नहीं. इवन आफ्टर आर्थोडेसिस ही नहीं होता, नी जॉइंट फेल हो जाए तो कुछ नहीं है हमारे पास. 2 बार फेल हो जाए, 3 बार फेल हो जाए, आप रिप्लेस करते हैं तो केवल कुछ नहीं हो सकता. देन दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट.
और इस इम्प्लांट का फायदा है कि इससे काम बराबर रहती है। नहीं तो नॉर्मली जब आप हैंड वॉश के क्या स्टेप्स होने चाहिए, वी ट्रेन ऑल आवर टेक्नीशियंस एंड ऑल आवर ट्रेनिंग फॉर, तो ये छोटी छोटी चीजें दैट कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जो एक बार किसी पेशेंट हो जाए तो वो सबसे वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट में। So we teach our doctors and the routine staff how to, उसके बाद इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर क्या है, डायबिटीज इज इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर। So we should, जिसको भी हमें रिप्लेस करना है, see all of you are general practitioners, आपके पेशेंट्स आते हैं डायबिटीज होती है, तो इट इज माय एडवाइस कि अगर किसी को भी HbA1c 7 से ऊपर हो तो यू शुड टेल देम नॉट टू गो इन फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। अगर 7 से ऊपर HbA1c है तो इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वी शुड गाइड आवर पेशेंट की पहले HbA1c कंट्रोल करो, और ब्लड शुगर प्री ऑपरेटिव जिस दिन ऑपरेट करना है उसके आसपास जो ग्लूकोज लेवल 200 से नीचे होना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स HIV पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स है, UTI अगर है तो दे शुड बी कंट्रोल्ड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो कंट्रोल होना चाहिए, ओबेसिटी कंट्रोल होनी चाहिए, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फेक्शन का डर ज़्यादा रहता है, हेपेटाइटिस में ज़्यादा रहता है। हेपेटाइटिस में उन कंडीशन है जिसमें डीकम्पोजिटेड सिरोसिस है, एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, हाइपोएल्बुमिनिया, कोगुलोपैथी, एसाइटिस है, इनमें इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अदर रिस्क फैक्टर जिसमें जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है, सोरियासिस, सिकल सेल डिजीज, COPD, क्रॉनिक किडनी डिजीज, पेशेंट ऑन एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। अगर क्रिटिकल 3 घंटे का, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी क्रिटिकल 3 घंटे का ऑपरेशन करके पेशेंट को चलाएं। पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया, उसको ड्रेप यूरिन कैथेटर पड़ा होता है, एप्टिड्यूल कैथेटर पड़ा होता है, तो देयर इज नो फर्क कि 3 घंटे के बाद पेशेंट को चला दें। तो हमें फ्लाइट तो पकड़नी नहीं है 3 घंटे बाद चलाना है, तो बेस्ट इज एक दिन पेशेंट को रेस्ट करना। तो अगर मेरे को करना मैं नहीं बोलूंगा मैं 3 घंटे के बाद चलना है। आई थिंक यू शुड पेशेंट को रेस्ट करो। वी कैन मेक द पेशेंट मोबाइल सेकंड डे, दिस इज पेशेंट वॉकिंग सेकंड डे विद अ स्टिक। तो दीस आर आजकल पेन इफेक्ट इतना मैनेजमेंट इतना इफेक्टिव हो गया। So I think we are not going into the details. So I think we should make the patient comfortable and let him walk. जब वो चाहे मैंने चलना है, कोई जबरदस्ती नहीं उसको 3 घंटे के बाद चलाना है, कोई बेनिफिट नहीं है। So लाइफ स्पैन जॉइंट का लाइफ स्पैन कितना, जैसे मैंने बताया कि एवरेज लाइफ स्पैन जैसे ह्यूमन का लाइफ स्पैन है 60 to 65 इयर्स एवरेज, कोई 100 साल भी जी लेता है, कोई 2 साल भी नीचे में, ऐसी जॉइंट का लाइफ स्पैन है अराउंड 10 to 15 years, but we taking all the precautions we can extend the life of the तो इसलिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था सारा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जॉइंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली 4 से 5 दिन पेशेंट को रहना पड़ता है कि कोई नहीं, हम दूसरे दिन हमारी कंडीशन इंडिया में ऐसी कंडीशन नहीं है, वी डोंट हैव होम केयर फैसिलिटी। अब्रॉड तो क्या होता है पेशेंट डिस्चार्ज होता है घर में जाके देयर इज अ नर्स, वो सारा इन्फेक्शन टीम कंट्रोल होती है जो घर विजिट करती है। हमारे इंडिया में इट्स नॉर्मल 4 से 5 दिन हम पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं। इट इज नॉट अ डे केयर सर्जरी। कई लोग कहते हैं कि आज पेशेंट क्या कल हम छुट्टी कर देंगे। यू शुड कीप पेशेंट फॉर 4 से 5 दिन मिनिमम। सो बायलेटरल सब सुनने में आता है नी रिप्लेसमेंट के 10, 15, 20, 25 मिनट की सर्जरी, एक अच्छी तरह तरीके से सर्जरी करनी हो तो कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा लगता है प्रॉपर सर्जरी में। हम जो सीमेंट डालते हैं इसको चिपकाने के उसको पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तब वो सीमेंट पकड़ में आ जाए, और approximate time is 30 to 60 minutes। तो घंटा तो आपको तैयारी में लग जाता है करने में। It's not a 10-15 minute 20 minute surgery। और हम रोबोटिक वाली यूज करते हैं तो हमारी टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सुने हमने नी रिप्लेसमेंट इज अ स्टिचलेस सर्जरी, कोई स्टिच नहीं लगेगा, दिस इज अ स्टिच लगेगा, सब में लगता है, सब में कुछ भी हम ग्लू लगा देते हैं और हम इसको स्टिचलेस सर्जरी करते हैं। बट दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट टू पेशेंट, किसी में ग्लू लगानी है, किसी में हमें स्टैपल्स लगाने हैं, तो रिजल्ट वाइज कोई फर्क नहीं, कोई स्टिचलेस सर्जरी नहीं है, सब में स्टिच लगते हैं। इसमें स्किन के अंदर स्टिच लगे हैं, ऊपर से ग्लू लगा दिया है, अदरवाइज नॉर्मल स्टेपल्स यूज करते हैं। अगर कोई फैट पेशेंट है उसमें ये स्टिचलेस ग्लू नहीं लगा सकते हैं। सो और क्या रिस्क रहते हैं, रिस्क एनेस्थीसिया के हैं, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कार्डिक प्रॉब्लम, ये सब एक नी रिप्लेसमेंट के रिस्क हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है दूसरा कि हमारे दोनों नीज इकट्ठे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर पेशेंट कंडीशन फुलफिल करे, इफ पेशेंट इज फिट। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज नहीं है, आपको क्रॉनिक हार्ट फेलियर नहीं है, आपको एडवांस सीओपीडी नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज नहीं है,
पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज नहीं है, रीनल फेलियर नहीं है, ओबीज नहीं है और हिस्ट्री ऑफ डीबीटी में, तो आप दोनों रिप्लेस कर सकते हो। और अगर एज आपकी 70 ईयर से कम है तो देन यू शुड गो फॉर बैलेटोनी जॉइंट रिप्लेसमेंट। 30 से ऊपर है तो डबल रिस्क हो जाता है। पल्मोनरी डिसऑर्डर 1.5-10 रिस्क हो जाता है। रिस्क क्या हो सकता है? ब्लड क्लॉट्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड इवन डेथ। अगर आप अब्रॉड जाते हैं, इंडिया में अगर आप काउंसलिंग होती है, बात अमेरिका में जैसे नहीं भी चल रहा, तो डॉक्टर्स ऑलवेज क्वेश्चन की इवन सर्जरी के बाद यू कैन डाई, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी से किसी को भी हो सकती है। सो टेकिंग इनटू प्रिकॉशंस, सो लेस देन, इसमें जो स्टडीज है उसमें बताता है लेस देन 2 in every 100 people will experience a severe complication after knee replacement. Best way to ensure positive outcome is to follow surgeon anesthetic physician instruction to re-op during hospital stay and post-op. ये जरूरी है कि हॉस्पिटल में स्टे में आप पहले ये हॉस्पिटल में घर जाने के बाद ही 1-1.5 महीने तक कॉम्प्लिकेशन होने का डर है। सो अप्रॉक्सीमेट आप कब काम करना शुरू कर सकते हो? नॉर्मली 6 to 8 वीक्स में आप अपना सब रूटीन काम कर सकते हो। एंड ये जो कुछ बताया मैंने, इसमें साइकिलिंग, स्विमिंग कब कर सकते हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स। अब क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट मैटर करता नहीं है। आई जस्ट टोल्ड यू क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट बहुत जरूरी है कि कौन सी क्वालिटी का इम्प्लांट डाल रहे हैं, किस कंपनी का डाल रहे हैं, उसकी कितना हिस्ट्री है, कितने इम्प्लांट्स हो चुके हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, आई थिंक द डॉक्टर शुड डिस्कस विद द पेशेंट कि उसका कंपनी का कौन सा इम्प्लांट डाल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि अगर हमारा नी एक बार लूज हो जाए, एक बार खराब हो जाए तो फिर रिप्लेस हो सकता है? बिल्कुल रिप्लेस हो सकता है आपका, अगर प्रॉपर प्रिकॉशन ले। मैंने पहले ही कहा हमारे पास हर तरह का इम्प्लांट अवेलेबल है आजकल, जिससे हम ये कर सकते हैं। सो फिर दूसरा होता है सर्जरी पेनफुल। सर्जरी तो कभी भी पेनफुल नहीं भी एनेस्थीसिया में होती है। सर आजकल हमारे पास कैथेटर्स आते हैं जो ऑपरेशन के बाद डालते हैं, जिससे कि पहले 3-4 दिन जो है पेन पेशेंट को बिल्कुल नहीं होता है। वो कैथेटर से उसकी हम पेन फ्री देते हैं पेशेंट को। पहले 3 दिन जो पहले बहुत ज्यादा पेन होता था वो खत्म हो गया, नहीं होता है। ये इंट्रा ऑपरेटिव कॉकटेल्स या इंट्रा ऑपरेटिव जॉइंट में जो ऑपरेट करते हैं कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, जिससे कि पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। नॉर्मली हम उसको नी बेंडिंग को शाम तक शुरू करा सकते हैं 3-4 घंटे के बाद। तो पेन पैचेस आ गए, ये सब चीजें जिनसे हम पेन मैनेज करते हैं। अब ब्लड चाहिए सर्जरी में, आजकल नॉर्मली अगर पेशेंट का प्री ऑपरेटिव लेवल 10 ग्राम से ऊपर है तो वी डोंट नीड ब्लड। तो इट इज ऑलमोस्ट मेरे एनेस्थेटिक्स रहता है कितना ब्लड लॉस लिखूं मैं, 20 cc, 30 cc, 40 cc। मैं तो ब्लड लॉस होता नहीं आजकल, क्योंकि कई मेडिसिन आ गए जो ऑपरेशन से पहले देते हैं, ऑपरेशन के बाद। अभी मैं आजकल कभी ड्रेन नहीं डालता हूँ, पहले हम ड्रेन डालते थे जॉइंट में। अभी हम ऑपरेट करने के बाद भी नेवर पुट इन ड्रेन, क्योंकि ब्लड निकलता ही नहीं, कभी ब्लड लॉस होता नहीं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन ब्लड लॉस होने का डर रहता है, उनमें भी नो कि इसमें ब्लड लॉस होना है, तो उन्हें कैरी करके रखते हैं। So this is a medicine that has revolutionized the role of इससे इसको देने से ब्लड लॉस इतना कम हो गया, we give it pre-op देते हैं और फिर post-op देते हैं। तो फ्लेक्सिबल नी जॉइंट आजकल ज्यादातर जॉइंट सारे फ्लेक्सिबल हैं। जैसे नॉर्मली जो जितने ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं या रोटेटर कफ के पेशेंट होते हैं, दिस इज रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, दिस इज कमिंग टू ये। देन इज एल्बो रिप्लेसमेंट। तो एल्बो रिप्लेसमेंट भी इस हैज गुड रिजल्ट्स। तो एक नॉर्मल हम पेशेंट के एल्बो भी रिप्लेस कर सकते हैं और जॉइंट्स भी रिप्लेस हो रहे हैं, पर नॉर्मली दीज आर द कॉमन जॉइंट्स दैट आर रिप्लेस्ड। तो देन इज द पीआरपी। पीआरपी एक डिसरिप्यूट में चला गया कि पीआरपी हम लगाएं नहीं लगाएं, कुछ लोग कहते हैं लगाओ नहीं लगाओ, और एक अच्छे तरीके से कुछ कंडीशन है जिसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। नॉट गोइंग इनटू डिटेल। ये प्रमोट हीलिंग, एंजियोजेनेसिस, प्रोलिफरेशन एंड कोलेजन सिंथेसिस। तो पीआरपी प्रिपेयर कैसे करते हैं? अपना ब्लड लेते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, देन वी पुट इट इनटू द जॉइंट अंडर स्टेलाइज टेक्निक। दिस इज द पीआरपी। This is very good results in few conditions। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको यूज करें, एब्सोल्युटली ना यूज करें, तो एक प्रॉपर डोज दें। तो टेंडिनोपैथीज हो गया, टेनिस एल्बो, टेंडिनोएक्विलिस जो हमारा प्लांटर फेशियाइटिस है, पार्शियल टीयर्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली स्टेज में, फ्रैक्चर हीलिंग में और पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग में। रोटेटर का रिपेयर हुआ है, लिगामेंट रिपेयर उसमें है। देन पीआरपी प्रोटोकॉल है, इट इज यूजिंग इंटरवल 1 to 3 इंजेक्शंस आफ्टर 3 to 6 weeks interval।
दैट इज स्टेम सेल हम देते हैं बोन मैरो से, एडिपोज से, अम्बिलिकल कॉर्ड से, दिस कैन डिफरेंशिएट टू डिफरेंट सेल्स। ये हमारा जैसे ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया या कार्टिलेज रिजर्वेशन है, उसमें बहुत हेल्पफुल है स्टेम सेल। सो कार्टिलेज रिपेयरमेंट, टेंडन लिगामेंट रिजर्वेशन में, बोन हीलिंग में, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस जिसको जो हिप जॉइंट में बहुत कॉमन होता है, उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अच्छे रिजल्ट दे रहा है। दिस इज कॉस्टली ट्रीटमेंट 2 से 2.5 लाख लग जाते हैं, बट दिस इज गिविंग गुड रिजल्ट। और हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में विद कॉम्बिनेशन ऑफ एक छोटी सर्जरी और इससे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। एक यंग पेशेंट जो एवीएन वाले जो पेशेंट आते हैं वो 20-25-30 साल के आते हैं, तो उनमें वी कैन गिव गुड रिजल्ट्स इन ऑल these all are available but they are costly. So this is just comparison की PRP और stem cell में क्या फर्क है। So not going into detail. That is advancement in fracture treatment. पहले क्या होता था, पेशेंट को हम डाल देते थे, ट्रैक्शन पे डाल देते थे, बड़े बड़े ओपन सर्जरी कर देते, प्लास्टर्स काफी देर लगे रहते थे। पर नाउडेज वी हैव मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, इंफ्लेमेटरी नेलिंग है, इतने बड़ा प्लेट हम डालते हैं, पर इंसीजन हम 2-4 छोटे-छोटे इंसीजन लगाते हैं, अंडर गाइडेंस करते हैं और परक्यूटेनियस केवायस डालते हैं अंडर सियाम। ये इतनी बड़ी नेल डाली है, पर इंसीजन एक छोटा सा इंसीजन इधर है, एक इधर काटा और एक इधर काटा है। तो दीस आर मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। ये प्लेट डालने में पहले हम इधर भी कीड़ा देते थे, इधर भी देते थे। अब ये सिर्फ इतना बड़ा इंसीजन देगा, इतना इंसीजन देंगे कि बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल सकते हैं। तो दिस इज स्पाइन सर्जरी, इतने बड़े स्क्रूज डाले, रॉड डाली, तो सिर्फ इतना Dr. Sahil is doing all these surgeries, and I am not doing more conventional, but this is minimally invasive surgery. That is this guidance we have CM, so good quality CM जिसमें guidance होता है। These are plates और implants बहुत अच्छे आ गए हैं, हर तरह के इम्प्लांट, हर बोन के लिए इम्प्लांट आ गए हैं। पहले एक प्लेट होती थी, उसी को हम एडजस्ट करते थे। नाउ वी हैव इम्प्लांट, पेल्विस के लिए इम्प्लांट्स हैं हमारे पास, हर एक बोन के लिए डिफरेंट इम्प्लांट्स हैं। फिर 3D जो CT है, 3D ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, इस गाइड्स अस कि क्या करना है। देन वी हैव अब्सॉर्बेबल स्क्रू है हमारे पास जो अंदर अंदर घुल जाते हैं। देन वी हैव फिक्सेटर्स जो हैं, बहुत बढ़िया फिक्सेटर्स हो गए हैं, जो वेरी लाइट एंड की कॉन्फिगरेटेड फिक्सेटर है। इसको डाटा फीड करना होता है, ये अपने आप डिफॉर्मिटी करेक्ट करता है। टोटल डिफरेंस इज बेटर टू बेटर, राइट। सो ये बोन आजकल ग्राफ्ट जो है आर्टिफिशियल बोन सब्स्टिट्यूट्स मिलते हैं, सिंथेटिक बोन ग्राफ्ट है जो हम आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट डाल सकते हैं। और ये भी प्रोटीन्स है बोन, ये अगर नॉन-यूनियन में ज़्यादा है तो ये सब अवेलेबल है, दैट वी कैन पुट इनटू द डिफेक्ट। दिस कैन पुट विद, अगर आपका कोई कैविटी है उसमें सिरिंज से डाल सकते हैं, इन्फेक्शन है उसमें डाल सकते हैं, तो these are giving very good results। तो स्टेम सेल, बोन मैरो, PRP, इन्फेक्शन जो मैंने बताया, they all are helpful। This orthopedics deformity correction exclusively, मतलब मैंने adult orthopedics छोड़ दी है। since last 8 years I am doing pediatric orthopedics। उसमें deformity correction होगी, limb reconstruction होगी, कोई birth anomaly है, कोई congenital deformity है, कोई fracture वगैरह, हाथ पैर के डमेडा है, वो सारी करेक्शन करता हूँ मैं। जस्ट फोटो दिखाऊंगा, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई डू एंड व्हाट स्पेक्ट्रम आई कवर। तो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट टाइम, राइट एज एंड राइट ट्रीटमेंट। मोस्टली हम कह देते हैं कि बच्चे हैं ठीक हो जाएंगे, वी टेक देम फ्रॉम ग्रांटेड, व्हिच इज नॉट राइट। बट बच्चों में राइट ट्रीटमेंट बहुत मैटर करता है बिकॉज दे हैव लॉट टू ग्रो। तो जैसे मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटीज क्लब फुट, क्लब फुट के बारे में सबको पता है कि इसमें कास्टिंग होती है और उसके बाद शूज लगते हैं और क्रॉसिंग लगता है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। जैसे ये बच्चा है क्लब फुट का जिसमें 9 टोज थे और 9 टोज हैं उसके, और क्लब फुट की डिफॉर्मिटी है, हमने कास्टिंग की है, उसके बाद डिफॉर्मिटी करेक्शन हुई है, ऑर्थोसिस दी है, एक्स्ट्रा टोज निकाले हैं। दिस इज द पोजीशन है जिसमें क्लब फुट का रिमोट एरिया जो ऐसे वॉक कर रहा था, तो वी हैव डन कास्टिंग एंड सिंपल स्टिचलेस सर्जरी जिसे टिनोटमी कहते हैं। एंड दिस इज द फाइनल पिक्चर। विद दिस आई वांट टू टेल कि जो कास्टिंग है वो किसी एज तक भी की जा सकती है, इवन 5-6 इयर्स तक भी, 8 इयर्स तक भी। आजकल क्या होता है कि 2 महीने का बच्चा है, पेशेंट बाहर आ जाए तो पहले ऑपरेट कर देते हैं, व्हिच इज नॉट राइट, बिकॉज वो एक स्कार फुट देता है और सप्पल फुट नहीं देता। तो अगर राइट प्रैक्टिस की बात की जाए तो कास्टिंग द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ द मेन ऑर्थोपेडिक्स जहाँ से शुरू हुई थी वो इसी लोग भूल गए। तो बट कास्टिंग टेक्निक आनी बहुत जरूरी है ना, किसी ने गलत कास्ट किया जिसको नहीं आता, पैडिंग अच्छे से नहीं की है, प्रेशर पॉइंट दे दिए हैं, तो पैर खराब ही हो सकता है। जैसे 20 डेज बेबी, अगर बड़ा बच्चा है जिसमें डिफॉर्मिटी स्टिफ है तो हम
डिसीज अगर जिसे फिक्सेबल कह देते हैं उससे भी हम करेक्शन कर सकते हैं। ये मेरा कर्निल का पेशेंट था, तो दे केम फ्रॉम देयर फॉर करेक्शन। और नदर प्रेजेंटेशन हमारी फ्रेनेटिक ऑर्थोपेडिक ओपीडीज में होती है जैसे इंटरव्यू, बच्चा पीछे टोस की तरह चलता है, अंदर पैर घुमा के चलता है। ज्यादातर ये एट्रीब्यूट होता है सिटिंग पोस्चर के कारण। डब्ल्यू सिटिंग पेरेंट्स को डिस्करेज करनी चाहिए, उसके कारण इंटरव्यू बहुत होती है। बाकी विटामिन डी वगैरह की कमी के कारण भी गोइंग हो सकती है लेग्स में, बट द मोस्ट कॉमन रीजन इज दिस। दिस इज एन एग्जांपल। ये पेशेंट भी ऐसे वॉक करता है, जिस बच्चे में अगर हम करेक्शन ना करें तो राइट साइड में बहुत अजीब वॉक कर रही है, वो लाइक बाहर को पैर घुमा के और बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। दिस इज आफ्टर करेक्शन। मतलब अगर हम ये चीज को करेक्ट ना करें टाइमली तो मुझे 4 लेवल सर्जरी करनी पड़ेगी, दोनों फीमर और दोनों लेग्स में ऑर्थोपेडिक करके करेक्शन अचीव की। जिसकी आज बननी है अपने आप बननी, जिसकी नहीं बननी नहीं बननी। तो ये कुछ है कि जो अक्वायर्ड है, मतलब बर्थ की डिफॉर्मिटीज नहीं है। जैसे जिसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी उसके कारण कुछ डिफॉर्मिटीज होगी, कोई स्पाइनल इशू है, सेरेब्रल पॉल्सी है, मेनिंगोमाइलोसिस है, उसकी डिफॉर्मिटीज होगी। जैसे ये बच्चा है जो एडीएस का था, जो प्रेजेंट है ऐसी डिफॉर्मिटीज के साथ मल्टीपल लेवल सर्जरीज करके ऑस्टियोटॉमी करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्पाइनल प्रॉब्लम के कारण पूरी मिसमैनेज होने के कारण डिफॉर्मिटी हुई है। जैसे ये पेशेंट है जिसको इंजेक्शन लगा था स्पाइन में स्टैटिक इंजरी होगी, जिसके कारण ये डिफॉर्मिटी हुई है। इसमें भी हम टेंडन बैलेंसिंग सर्जरी करते हैं, टेंडन को निकाल के बैलेंस कर देते हैं, जिससे फुट की शेप और पीछे जो उसकी पोजीशन है वो रिस्टोर हो जाए। एक और कॉमन प्रेजेंटेशन है बोल्ड लेग्स की, जैसे गोइंग ऑफ लेग्स हो गया, नॉकनीज हो गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉकनीज है वो नॉर्मल है अप टू 3 इयर्स ऑफ एज, उसके बाद भी अगर नॉकनीज रह रहा है तो वो बीमारी वाला है, उसमें हमें ट्रीटमेंट चाहिए होती है अप टू 6 इयर्स भी पे। जैसे अगर सिंगल साइड नॉकनीज है या सिंगल साइड गोइंग है, वो नॉर्मल कभी नहीं है, वो बिल्कुल अपने आप ठीक नहीं होगी, वो बीमारी के कारण है, उसे हमें कंसल्टेशन जरूर चाहिए, इवैल्यूएशन चाहिए, कारण क्या है। ये एग्जांपल है 9 ईयर की बच्ची है जिसमें ये नॉकनीज है, इसमें सिंपल हम स्टेपल्स लगाते हैं, इससे डिफॉर्मिटी करेक्शन हो जाती है बहुत इजीली। बहुत सिंपल 1-2 सेंटीमीटर इंसिजन आता है, नेचुरल वे ऑफ करेक्शन है, कोई ऑस्टियोटॉमी कोई बूम नहीं करनी पड़ती। जैसे ये इसकी वीडियो है और ये हमने स्टेपल लगा दिया तो बाहर से ग्रोथ हो रही है, अंदर से ग्रोथ नहीं हो रही है और नेचुरल वे से डिफॉर्मिटी करेक्शन हो जाती है। अगर बच्चा लेटर है, स्केलेटल मैच्योर है, मैक्सिस आ गए, नर्व के ये ग्रोथ बची है, तो हमें वो कट करके इसकी करेक्शन करनी होती है। ये इससे स्कार है, ये बहुत ज़्यादा मतलब अगली पता लग जाए तो बहुत सिंपल है, जितना बड़ा इंसिजन आता है 4 मंथ का बेड रेस्ट है, इतनी सारी मूवमेंट करनी पड़ती है, अगली प्लेट लगानी पड़ती है, बट इफ दे आर लेट वी कैन डू। तो यही तकनीक से हम जो लंबाई में फर्क होता है उसमें भी हम ये तकनीक अप्लाई कर सकते हैं। हम जो लंबी साइड है उसको ग्रोथ पे स्टेपल्स लगा के ग्रोथ को रोक सकते हैं, कैलकुलेट करके ऐप है बहुत सारे जिसके साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और लेंथ को बराबर कर सकते हैं। टाइम की सर्जरी करनी बहुत जरूरी है। फिर एक बच्चा जो हमारी ओपीडी में आप लोगों के पास भी आता होगा कि लग रहा है बच्चा, ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है कि लड़ाते बच्चे आते हैं, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, और स्पाइन से लेके हिप से पेल्विस, नी, एंकल। तो अकॉर्डिंग टू द एज, ये इसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट अकॉर्डिंग टू द एज की वैल्यू कि क्या रीजन हो सकता है। मोस्ट डेंजरस इसमें से इन्फेक्शन है जो इसलिए होना चाहिए, बाकी सबको तो कोई मैटर नहीं करता है, टाइम लग जाएगा, वैल्यूएशन में टाइम लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। इन्फेक्शन मिस होनी चाहिए। अगर इन्फेक्शन मिस होती है तो उसके नुकसान बहुत है। जैसे 1 साल का बच्चा है, पेडियाट्रिशियन एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं, बच्चे ठीक हो जाते हैं, न्यूनेटल केयर बहुत अच्छी हो गई है, सेटअप बहुत बड़े हो गए हैं, बट जॉइंट मिस हो जाते हैं। ये 1 साल के बच्चे का हिप जॉइंट पूरा गायब हो गया है। नाउ बिकॉज ऑफ जस्ट कि एक हिप जॉइंट मिस हो गया, ट्रेन करना टाइम से, एक ऑटोमेटिक इंटरवेंशन चाहिए थी, और 1 साल के बच्चे को जल्दी कोई ऑपरेशन भी आपने लगाता है, मैंने 20 डेज के बच्चे को ट्रेन किया होगा, तो उससे उसका ही बच जाता है। अभी सारे मसले सर्टिफिकेट में होते हैं, खराब नहीं है। सिमिलरली जैसे ये बच्चा 1 साल का मेरे पास आया था, मैंने इसको डिस्क्राइब किया, इसमें टीबी निकली थी, तो हमने इसकी ट्रीटमेंट की और ये बिल्कुल जॉइंट सेव हो गया, मतलब टाइमली ट्रीटमेंट हुआ। अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट ना करें, देखो ये हाफ जॉइंट जिसका खाया गया है, ये पूरी की पूरी ह्यूमरस बोन गायब हो गई विद एल्बो जॉइंट। दिस इज ऑल बिकॉज दे ऑल मिस द इन्फेक्शन। ये बाकी प्रेजेंटेशन है जो मैं करता हूँ पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में, जो जेंटल हिप डिस्लोकेशन है। ये मेरे पास बच्चा श्रीनगर का जिसमें हिप डिस्लोकेटेड था, दोबारा डिस्लोकेट हो गया, तो मैंने सर्जरी की, विल फाइन। ये कंडीशन होती है कॉक्सा पैरा, जिसमें ये नेक शाफ्ट जो एंगल है, नेक शाफ्ट ये जो एंगल है ये डाउन है। अगर आप देखें तो इसका एंगल अप है, इसका डाउन है, ये क्रॉस लाइन नहीं बैठ पाते, तो इसमें भी टाइम सर्जरी करनी चाहिए। हमने ऑस्टियोटॉमी करके एंगल को सही किया, जैसे शी इज एबल टू सिट क्रॉस लाइन। ये प्लानिंग है,
मतलब आई डू ऑल द प्लानिंग बिफोर एंड हम पेशेंट को हम दिखाते हैं कि ऐसा दिखेगा, हम ये करने लगे और यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे, दिस इज अ पिक्चर। तो ये कंडीशन है परचेज जिसमें अपने आप गोला करने लग जाता है, इसमें भी टाइमली कितना फॉर्मेट हो जाता है। ईपी जिसमें ये जो आइसक्रीम की, अगर हम आइसक्रीम कर रहे हैं और ये आइसक्रीम स्किप कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं फोम के ऊपर से, इसे ईपी कहते हैं। ये पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी है, इसमें अगर टाइमली पता लग जाए, सिंपल स्क्रू डालने पड़ते हैं। अगर हम लेट हो जाए तो हमें बहुत मेजर सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे ये बच्चा है, इसका ये जो हेड है थोड़ा स्लिप कर गया है, इधर नहीं स्लिप किया, तो इसमें सिंपल स्क्रू डाला है 5 सेंटीमीटर से, ये सेव होगा। अगर बाई चांस लेट हो जाए तो ये 8% का केस है। इसके पैर बाहर रख के चल रहा है, बैठने में मुश्किल हो रही है, पूरा ऊपर लाइन उड़ा के नहीं बैठता, तो इसमें बहुत मेजर सर्जरी लगती है। अभी पूरा एक जॉइंट हम खोलते हैं, उसकी कैप को उतारते हैं, नेक को शेप ऑफ करते हैं एंड उसे रीलोकेट करते हैं। ये पहले हम ऐसे बैठता था जैसे जब पूछता, तो ये जो फाइन के हुए यहाँ पे इसका प्रॉब्लम। फिर एक और प्रेजेंटेशन है टो वॉकर। टो वॉकर हैबिट हो सकती है अपनी वॉकर देने के कारण, वैसे वॉकर बैन होने चाहिए। डेवलप्ड नेशन कनाडा अमेरिका में बैंड है और इंडिया में तो बैन हो नहीं सकता। और ये हैबिचुअल है, पेरेंट्स जो वर्किंग क्लास है वो जल्दी बच्चों को वॉकर में डाल देते हैं, जिसके कारण बच्चों को हैबिट पड़ जाती है। अगर ये हैबिट नहीं है तो ये बीमारी है, वो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। जैसे एक बीमारी सेरेब्रल पॉल्सी है, आजकल न्यूरोनटल केयर के कारण बच्चे बच जाते हैं, 150-300 ग्राम बच्चा ये नॉर्मल है, तो उसके कारण कई बार ऑक्सीजन की डिप्राइवेशन के कारण ब्रेन इंसल्ट हो जाती है, जिसके कारण बच्चों के मसल में कोऑर्डिनेशन बैलेंस इशू आ जाता है, जिसके कारण वो नॉर्मली चलने लग जाते हैं। तो उसमें फिजियोथेरेपी ऑर्थोसिस, बॉटॉक्स एंड सर्जरी, मतलब बहुत सारी मॉडलिटीज हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन करना होगा। ये एक है जो लेट प्रेजेंटेशन है, उसमें हम सिंगल लीफ में मल्टी लेवल सर्जरी करते हैं। यूज्ड टू वर्क लाइक दिस, इसमें दोनों फीमर, दोनों पैटेला बोन, हिप जॉइंट सब एक लेवल में करते हैं, तभी कहते हैं सिंगल इवन मल्टी लेवल सर्जरी। फुट रिकंस्ट्रक्शन सब कुछ किया हुआ है, देन गेम स्ट्रेट। फिर न्यूमोटास वायरस अगर एल्बो फ्रैक्चर गलत जुड़ जाए तो इट कैन एंड अप इन प्लास्टिक ऑफ डिफॉर्मिटी, तो इसकी डिफॉर्मिटी करेक्शन में 30 डिग्री इसको भी फ्रेम लगा के करेक्शन की है। दिस इज द फाइनल पिक्चर, 18 सेंटीमीटर की लेंथनिंग एंड 30 डिग्री नॉर्मलाइज करेक्शन किया है। थैंक यू। Dr. Sudhanshu, please come forward. Dr. Vipul, come. हाँ जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज जी ये मीटिंग हुई है, ये नीमा और गार्डियन हॉस्पिटल के इकट्ठे मिलकर मीटिंग की है CME। ਅੱਜ ਦੀ CME ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਜਿतਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, आर्थोस्कोपी जो दूरबीन की सर्जरीज कहल रही हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज और अपना एक्सीडेंट केयर में जो भी एडवांसमेंट है वो बारे CME ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸमेंट हो रही है और ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸमेंट ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਚੰਗੀ CME ਸੀਗੀ, ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ SP ਡਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੀਮਾ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਦੀ CME ਸਾਡੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਟਰਾਮਾ ਇਨ ਆਰਥੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ।